Students, now we are going to start the new chapters. Chapter number 4, linear equation in two variable. Okay, in third chapter, okay, you plot the points, okay, and the order pair you already know that, right? It is called the Cartesian pair. Now in this chapter, the chapter name is a linear equation in two variable. Okay, you already learn in standard linear equation in one variable, also in the solutions. So what is the meaning of the linear equation in two variables, right? So here linear equation in one variable. So linear, that means you already know that the degree of one of the any variable. Okay, equation that means 2x plus 3 is equal to 5. Okay, you get the value of x, put in the equation, LHS is equal to RHS, right? So that's why it is called the equation, right? Okay, so the linear equation in two variable, matlab we here the two variable. Okay, so here first of that linear equation in one variable. So it's very simple. In the standard form, the linear equation ax plus b is equal to 0, where a does not equal to 0. Okay, a and b, okay, a and b are real numbers, right? Okay, so it's very simple. So this is the standard form. Okay, means 2x plus 3 is equal to 0, right? It is a linear equation, right? Also you know that the solution, okay, or root, okay, of the linear equation in one variable is very simple. X is equal to minus b by a. Okay, so in this linear equation in one variable, always unique solution, unique, that means one and only one, मतलब x की variable की कोई एक ही value आपको मिलेगी, right? So that's why the linear equation in two variable, so one variable. Now linear equation in two variables, so first of that, the standard form of the linear equations is ax plus by plus c is equal to 0. Okay, here the ax plus by plus c is equal to 0. Understand? Okay, so this is the standard form of the linear equation, but the condition, necessary condition is a, b and c are the real numbers. A and b are not 0 simultaneously. दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, एक हो सकता है, मतलब x, a is a coefficient of x and b is a coefficient of y. तो a और b alternately ultimately हो सकता है 0. Got it? Okay, तो हम लोग उसको एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत चेक करेंगे, डोंट वरी. Then after the here the it's very simple, and the necessary condition a square plus b square does not equal to 0. समझ रहे हो? कोई एक टर्म 0 हो, a या b, कोई एक कोफिशिएंट 0 हो सकता है, बट उनका स्क्वायर करके टोटल 0 नहीं हो सकता. इट इज़ द नेसेसिटी कंडीशन. ओके, अंडरस्टैंड? सो इट इज़ द लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिखे, x एंड y. ओके, तो इट इज़ द बेसिक कंसेप्ट. ओके, एक दो एग्जांपल चेक करते हैं बच्चों, जिससे हमें थोड़ा बहुत लिनियर इक्वेशन समझ में आए. तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है हम उसको फॉलो करेंगे. तो चलो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, राइट? सो दिस इज द लिनियर इक्वेशन. ओके, और एक एग्जांपल 2x इज इक्वल टू 5y, इसको भी हम लोग लिनियर इक्वेशन कह सकते हैं. ओके, अगर अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 10, दिस इज ऑल्सो द लिनियर इक्वेशन. तो हम उसको कैसे समझे, कैसे लिनियर इक्वेशन क्यों है? ओके, तो सबसे पहला जो हमने लिखा वो आपने बताया कि 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ओके, तो आप इसको क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लिनियर इक्वेशन. सो कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, तो कंपेयरिंग okay, standard equation, so ax plus by plus c is equal to 0. मैच हो रहा है,
राइट। सो ये लीनियर इक्वेशन है। चलो मान लेते क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करोगे, तो 2x माइनस 5y, कॉन्स्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो इज इक्वल टू 0 करके 0 लिख सकते हैं। ये भी कंपेयर हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में आ रहा है। क्लियर। चलो थर्ड के अंदर क्या सोचेंगे हम लोग, थर्ड इक्वेशन के अंदर कह सकते हैं कि अंडर रूट 3x माइनस प्लस में लिखता हूँ 0 इंटू वाई, क्योंकि y नहीं है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा कि साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, लेकिन a 0 हो और b ना हो, b वाली टर्म मतलब y वाली टर्म्स ना हो, ऐसा भी हो सकता है। y वाली टर्म्स हो तो क्या हो सकता है, x वाली टर्म्स ना हो तो भी वो लीनियर इक्वेशंस हो सकता है इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो कैसे, तो हमने क्या कर दिया, उसका प्रोडक्ट 0 इंटू वाई, 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज इक्वल टू 0, यू ऑलरेडी नो दैट। दिस इज ऑल्सो कंपेयर टू द x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये 0 है बट रूट 3 का स्क्वायर तो 3 है, नॉट 0 हो गया, नॉट इक्वल टू 0, तो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। ओके, तो ये आपको नॉर्मली ये सिंपल बेसिक चीज़ समझ आ गई कि हम लोग लीनियर इक्वेशन के अंदर आपको जो वन वेरिएबल था वो मिलता था। ओके, तो उसका सॉल्यूशन और रूट्स है ना, यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। ओके, और यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि ये 2 वेरिएबल है लेकिन डिग्री तो 1 ही है। अंडरस्टैंड। ओके, चलो इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम लोग एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करते हैं बच्चों। Question number 1. The cost of the notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in 2 variables, okay, and to represent these statements. Okay, simplify कर दिया है कि आपको 2 वेरिएबल लेना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल कौन है वो ढूंढ लो। तो बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। क्या दिख रहा है आपको, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, राइट। तो आप यहाँ पे मार्क कर दो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो हम लोग एजम्पशंस करेंगे, राइट। क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू, क्या एजम्पशंस करेंगे, राइट। तो मान लो कि वो ₹X है। क्लियर। ओके, उसके बाद कॉस्ट ऑफ अ पेन, क्या कर लेंगे हम लोग इसको एजम्पशन पे, ओके, ₹Y मान लिया। अब फिर से हम लोग फर्स्ट लाइन रीड कर रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस, ओके, इज अ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। तो नोटबुक की प्राइस क्या है, तो क्या X है। ओके, क्या है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन, द कॉस्ट ऑफ द पेन क्या है 2Y, राइट। ओके, हम रिप्रेजेंट कर दिया तो क्या हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज द अवर आंसर। यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म 0 है, सी, दैट मीन्स। ओके, तो ये काम आसान हो गया। ओके, तो ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हम बाद में ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो सीखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। चलो क्लियर। नाउ उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, रीड केयरफुली। Express in the following linear equation in the form of the ax plus by plus c and also indicate the values of the a, b and c in each case. चलो क्लियर बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। आंसर्स। First one, first equation is 2x plus 3y minus 9.350y is equal to 9.35y is equal to 0। मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया। अब क्या करेंगे, ओके, सो कंपेयरिंग, ओके, अबो इक्वेशन, ओके, विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया। अब चेक करें, सो हियर a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, ओके, b इज इक्वल टू क्या है एंड c इज इक्वल टू क्या है।
अंडरस्टैंड। चलो तो क्या दिख रहा है हमें फर्स्ट में, तो आप कह सकते हो सर अगर कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट a 2 है, b मतलब y का कोफिशिएंट 3 है एंड कांस्टेंट टर्म c है, तो माइनस 9.35 बार, 9.35 बार। चलो क्लियर। बस ऐसे ही हमें आगे सारे इक्वेशन को सॉल्व करते जाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो 2 के अंदर नॉर्मली हमें क्या दिया है, तो कि x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके तो यहाँ पे कंपेयर विथ, ओके कंपेयरिंग इक्वेशन, ओके विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंडीशन भी सेटिस्फाई, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो ही रहा है, बराबर है। ओके सो देयर फॉर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओके बी क्या आ सकता है, सी क्या आ सकता है। चलो चेक कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है 1, यहाँ पे क्या है -1/5 एंड c क्या है -10। चलो अंडरस्टैंड, ओके समझ में आ रहा है। तो चलो बाकी ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। ओके तो क्वेश्चन ओके चलो क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में हमारे पास नॉर्मली क्या है, तो कि -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले तो 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके इक्वेशन नंबर 1। सो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, right, so a is equal to b is equal to and c is equal to। चलो क्या आएगा बच्चों, a का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है इक्वेशन में -2। ओके फिर y का कोफिशिएंट b बोलते तो 3 है और कांस्टेंट टर्म क्या है -6, राइट। देखो ये तो कोई भी आ सकता है, नॉन नेगेटिव नॉन जीरो, मतलब नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन डेसिमल कोई भी हो सकता है, बट जीरो नहीं होना चाहिए, वो भी साथ में, अकेला हो तो चलेगा। ओके चलो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। ओके क्वेश्चन नंबर 4। चलो 4 में क्या दिया है आपके पास, x इज इक्वल टू 3y, तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए तो x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। खाली कंपेयर, तो कंपेयरिंग विद इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो तो कंपेयर करते जाओ, x का कोफिशिएंट जो दिख रहा है वो कितना है आपके पास 1, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ y हियर -3, अंडरस्टैंड, एंड कांस्टेंट टर्म है नहीं, दैट मीन्स 0। आ गया समझ में। तो यहाँ पे क्या हुआ क्वेश्चन 4 में, कांस्टेंट टर्म नहीं है, वेरिएबल है। ओके अब देखते हैं। ओके चलो अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, तो क्वेश्चन नंबर 5 2x इज इक्वल टू -5y। ओके तो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, राइट। कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, चलो कंपेयर करते हैं। ए क्या दिख रहा है, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे 5 है, कांस्टेंट टर्म क्या है 0। चलो क्लियर, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, सो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने देखा कि y एब्सेंट है, एब्सेंट इन द सेंस के उसका कोफिशिएंट क्या है 0 है। ओके तो हमने इसको, वैसे तो वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, हमने प्लस 0y करके उसको
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो अब कंपेयर विद द ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट a है तो यहाँ पे कौन है वो 3, जबकि y कौन है 0 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है। अंडरस्टैंड? सो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्लियर? ओके, नाउ अब और इक्वेशंस हम लोग आगे देख लेते हैं। चलो, तो अब आए क्वेश्चन, हमने लास्ट में एक किया था, सो क्वेश्चन 7, ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट 7, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे? तो 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इन टू वेरिएबल, राइट। ओके, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो कौन है ax प्लस बी वाई? तो a क्या मिल रहा है आपको 0, b क्या मिल रहा है 1, और c क्या मिल रहा है -2। अंडरस्टैंड? ओके, चलो ऐसे ही लास्ट इक्वेशन 5 इज इक्वल टू 2x। तो कोई बात नहीं, 5 इस साइड पे चला जाएगा। 5x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया, कंपेयर कर दिया। तो x इज इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है आपको यहाँ पे? सो 2। ओके, b क्या मिल रहा है? मतलब x का कोफिशिएंट a 2 मिल रहा है, y का कोफिशिएंट b यहाँ पे 0 है, और c क्या है? -5। क्या है? -5। ओके, अंडरस्टैंड? यानी आपको हमें स्पेशली कोई भी इक्वेशन में से ए बी सी निकालना आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया। क्लियर? और ऐसे सम्स के अंदर आप प्रॉब्लम सम को सिंपल सम में कन्वर्ट करना भी सीख गए। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, समझ में आ गया ये पोर्शन? ओके, चलो बच्चों, तो फिर आगे हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अब नया टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन वन वेरिएबल वी ऑलरेडी नो दैट द सॉल्यूशन इज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन, वेरिएबल की कोई एक की वैल्यू मिले और वो सेटिस्फाई कर दे। ओके, और यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सेड फॉर रियल नंबर्स x and y variable the pair of ordered pair, right, satisfy the equation of ax plus by plus c is equal to 0, then this pair, okay, xy is called the solution of the linear equation in two variables where the abc real numbers and a square plus b square does not equal to 0। okay, एक इम्पोर्टेंस पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है कि जो ऑर्डर्ड पैड आई ना, वो x और y की जगह पे आप रख दो वो वैल्यू, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है। तो आप मान लो कि दोनों वैल्यूज़ है, यानी वो पूरी पैर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ओके, ए सिंगल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन है, डबल इक्वेशन आएगा उसको पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, वो आप स्टैंडर्ड 10 में पढ़ोगे। अंडरस्टैंड? ओके, अब अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, याद रह गया, लीनियर में क्या था? यूनिक सॉल्यूशन, जबकि टू वेरिएबल में क्या है? वन वेरिएबल में था वो यूनिक सॉल्यूशन था, टू वेरिएबल में वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो आप कितनी पैर ऐसी बना सकते हो? बहुत सारी के जिसका सम 25 है, 5 प्लस 20, 20 प्लस 5 लिख सकते हैं, 10 प्लस 15 या 15 प्लस 10। ओके, तो ऐसी इनफाइनाइट पैर 0 एंड 25, 25 एंड 0। ओके, तो ऐसी इनफाइनाइट एक्स और वाई की पैर मिल सकते हैं जो 25 हो। ओके, इसीलिए कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है। चलो क्लियर, ये बात आपके दिमाग के अंदर क्लियर हो गई। ओके, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम एग्जांपल्स, इसी बेस सम एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं ताकि आपको थोड़ा दिमाग के अंदर क्लियर हो जाए। ओके, कि ऑर्डर पैड कैसे काम करती है। चलो, तो सबसे पहले
चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ओके तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फर्स्ट का आंसर हम लोग क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द x इज इक्वल टू, तो आपकी x और y की जो ऑर्डर पेयर है वो 2 and 1 है, राइट। इक्वेशन कौन सा है हमारा, तो कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। बहुत आराम से x और y ऑर्डर पेयर है, पहला x होता है सेकंड y होता है, वैल्यू पुट करते जाओ 2 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू के, राइट। तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे दिया है 2 और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1, सो 2 2 जार 4 प्लस 3 1 जार 3 इज इक्वल टू के, सो k इज इक्वल टू हाउ मच 7, क्या मिल गया हमें, k इज इक्वल टू 7, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k, अंडरस्टैंड, ओके। तो हमें आप क्या मिल गया, k की वैल्यू मिल गई। चलो ठीक, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, ऑर्डर्ड पैड x and y is equal to 2 0, right? Okay, solution of the linear equation 2x plus 3y is equal to k. Okay, then find the value of k again. तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 2x plus 3y is equal to k। क्या करेंगे, k है, राइट। अब क्या करोगे यहाँ पे, तो बहुत सिंपल है, 2x की वैल्यू 3 इंटू वाई की वैल्यू इज इक्वल टू k। तो आपने x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, y की वैल्यू कितनी है 0, तो क्या मिल गया 2 2 जार 4 प्लस 0 इज इक्वल टू k, सो k इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 4। आ गया समझ में। तो लीनियर इक्वेशन 2 वैल्यू, तो एक बात समझ लो कि इन दोनों इक्वेशन के अंदर जो 2 and 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, बट k की जगह पे मैं यहाँ पे 7 कर दूंगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ओके। तो उसका एक सॉल्यूशन वो क्या आ गया, 2 and 1 आया। ठीक इसी तरह 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 k की जगह पे। तो इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है वो एक सॉल्यूशन 2 and 0 है, और उसके अलावा भी बहुत सारे आ सकते हैं, ओके। अब मान लो आपको 2 ही सॉल्यूशन लाने हैं, ओके, 2 ही सॉल्यूशन लाने होते हैं, तो वंस यू पुट x इज इक्वल टू 0, ओके, एंड सेकंड में एंड नेक्स्ट y इज इक्वल टू 0, ऑल्टरनेट एक की 0 कर दो तो आपको 2 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे तुरंत, समझ में आया। अगर 2 ढूंढने हैं तो 2 से ज़्यादा ढूंढने हैं तो आप अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओगे और आपको इक्वेशंस वैल्यू मिलती रहेंगी। तो जनरली सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वी हैव द 2 मेथड्स अल्जेब्रिक, ये जो हम सॉल्व करें वो अल्जेब्रिक मेथड्स है। जो दूसरी मेथड है उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड्स कहता है, राइट। जैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन प्लेन के अंदर, उसी को, राइट। चलो आगे बढ़ते तो फिर चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है फाइंड द वैल्यू ऑफ द b 3n माइनस 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द 3x, ओके, 4y इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे अगेन इन दिस इक्वेशन द ऑर्डर पैड xy इज इक्वल टू माइनस 3n 4, उसका मतलब ऑलरेडी ये जो पैर है ना वो हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन है ही, ओके। तभी आप लोग अननोन वैल्यू ढूंढ सकते हो। सो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू b, के की जगह पे b है और कोई फ़र्क नहीं है। सो 3 इंटू ब्रैकेट माइनस 4 इंटू ब्रैकेट इज इक्वल टू b। ऑर्डर पैर रखते जाओ, कौन सी आपकी ऑर्डर पैर है, तो आपने बताया कि x इज इक्वल टू माइनस 3 रखना है और y इज इक्वल टू 4 रखना है। तो आपके पास आंसर क्या आया, 3 3 जार माइनस 16 इज इक्वल टू b। तो ये आपके पास आ गया 4 and 20, सो b इज इक्वल टू माइनस 25, राइट। तो b क्या मिल गया हमें, माइनस 25। चलो क्लियर, ओके। तो ये तो बहुत आसान था और हमने वैल्यू पुट कर दी, चलो क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, बोलो। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हमारे पास एक्सप्रेस द इन द टर्म्स ऑफ y, पहला तो काम तो यही करना है, ओके। तो सबसे पहले तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन क्या है, पूरे इक्वेशन को y के फॉर्म में लाओ, किसके फॉर्म में लाओ, y के फॉर्म में, ओके। क्यों, क्योंकि ये आपको ग्राफिकल मेथड में हेल्प करेगा, किस में, ग्राफिकल मेथड में, राइट, ओके। तो चलो क्या करोगे, सबसे पहले तो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x प्लस इनसाइड, सो नेगेटिव, प्लस है तो माइनस, सो y इज इक्वल टू
8 माइनस 3x/2 आपने वैल्यू पुट कर दी, खत्म। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, आपने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 ना। चलो क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन का मतलब जो है, फर्स्ट जो डिमांड थी वो खत्म हो गई। सेकंड क्या है, चेक वेदर द पॉइंट्स ऑफ द 4n - 2 लाई ऑन द लाइन। उसका मतलब क्या हुआ? ओके, तो जो ये लीनियर इक्वेशन है ना, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है इस पैर से, तो मतलब ए पॉइंट इसी लाइन पे है, क्योंकि आपने पहले ही देख लिया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर इनफाइनाइट मैली सॉल्यूशन होते हैं। ओके, तो बहुत सारे पॉइंट्स इसी लाइन के अंदर आ सकते हैं। ओके, अ लाइन कंटेनिंग द सो मैनी पॉइंट्स, अंडरस्टैंड। ओके, तो चलो चेक कर लेते हैं। तो आपके पास जो पैर है एक्स एंड वाई, जो हमारे पास जो पैर है वो पैर कौन सी है? सो दिस पैर इज इक्वल टू 4 and -2, राइट। आवर इक्वेशन में LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो आप कह सकते हो 3x + 2y। चलो वैल्यू पुट करते जाते हैं, तो 3 ध्यान रखना, तो 3x = 4 है, ओके, एंड 2 एंड y = -2, तो 12 हो गया, -4 = 8 एंड = RHS, राइट। तो बहुत सिंपल। सो दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द गिवन इक्वेशंस, राइट। यानी इसी इक्वेशन की लाइन के अंदर ये पॉइंट आ सकता है। ओके, उसी पॉइंट के अंदर है, सॉरी उसी लाइन के ऊपर है। चलो क्लियर, अंडरस्टैंड, क्लियर। तो बहुत आसान है आपको सॉल्यूशन को समझना। ओके।